آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا۔ پارلیمانی کمیٹی کا وقت ختم، معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں چلا گیا۔ حکومت نے احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چیمہ کا نام دیا۔ اپوزیشن نے احد چیمہ اور سید محسن رضا نقوی کو امیدوار چنا ہے۔ مزید جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ڈیڈ لائن تھی 3 روز کی، یعنی 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن تھی، جو 10:11 پر اب وہ دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہوئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سطح پر یا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور قائد ایوان کی سطح پر تو نگران وزیر اعلیٰ کا جو نامزدگی تھی اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ کون بنے گا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو اس حوالے سے آج بھی طویل نشست ہوئی، لیکن طویل نشست میں اپوزیشن اور حکومتی جو ارکان اسمبلی تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے، وہ اپنے اپنے امیدواروں کے گن تو ضرور گاتے رہے، لیکن کسی ایک امیدوار پر متفق نہیں ہو سکے۔ البتہ اب 4 نام جو ہے وہ بذریعہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو جائیں گے، جس میں سر فہرست جو نام ہے وہ سید محسن رضا نقوی کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احد خان چیمہ کا نام ہے، نوید اکرم چیمہ جو سابق چیف سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے، جبکہ احمد نواز سکھیرا جو کہ سرکاری ملازم ہیں ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ اب چونکہ 48 گھنٹوں کا وقت ہوگا آئینی طور پر اس حوالے سے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی جانب سے آج جو اعتراض اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ نوید اکرم چیمہ کا نام جو ہے وہ غیر آئینی طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے جب نام دیا تو اس میں 3 نام تھے۔ 3 ناموں میں سے جو ناصر سعید کھوسہ تھے وہ معذرت کر چکے تھے، جبکہ نصیر خان سابق وزیر صحت ان کا نام شامل تھا، ان کی ڈیول نیشنلٹی کا ایشو ہے، جبکہ احمد نواز سکھیرا سرکاری ملازم تھے اور ان کا نام دیا گیا، جبکہ اب ایک مرتبہ ٹھیک ہے راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب کا سیاسی محاذ اور انتخاب کی تاریخ کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف نے گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان کو خط لکھ دیا۔ عثمان بزدار نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مانگی۔ تحریک انصاف کے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر سردار عثمان بزدار کی طرف سے گورنر پنجاب کو خط لکھا گیا ہے۔ خط میں گورنر پنجاب سے صوبے میں انتخاب کی فوری تاریخ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی، فوری طور پر پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کے حکم میں توسیع، خلاف ورزی پر 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پیٹرول پمپ، میڈیکل سٹور، ہسپتال، تندوروں کو استثناء۔ شادی ہال بھی رات 10 بجے تک بند کرنا ہوں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فروخ سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن ہنا حفیظ اللہ اسحاق اور سید کمال حیدر نے عدالتی احکامات کے متعلق رپورٹ پیش کی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ریسٹورینٹس کو رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ممبر کمیشن نے بتایا کہ اس پر ڈی سی آفس نے عمل کرنا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ 10 بجے دکانوں کی بندی سے سکون آ گیا ہے، 2 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ مارکیٹس فلاؤٹ کر رہی ہیں، 10 بجے بند ہونے کا آرڈر وہ اب انفورس ہے، ڈی سی آفس کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ایکشن لیں، ایکشن رکنا نہیں چاہیے، اور 2 لاکھ تک جرمانے کا ابھی آرڈر ہوا ہے۔ ہنا حفیظ اللہ اسحاق نے عدالت کو بتایا کہ محکمہ زراعت نے آلات کی خریداری کے لیے 19 بلین روپے مانگے ہیں۔ فاضل جج نے کہا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے، محکمہ زراعت صرف سپر سیٹر مشین منگوائے، ہاتھی کے پاؤں میں ساروں کو تو نہ ڈالیں۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سارے شہر میں پرائیویٹ پارکنگز بنا دی گئی ہے، یہ سب ایل ڈی اے کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نجی پارکنگ میں نجائز طور پر 100% زیادہ سرچارجز وصول کیے جا رہے ہیں، پارکنگ کمپنی کیا کر رہی ہے؟ ڈی جی ایل ڈی اے نے بتایا کہ غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ کریں گے۔ عدالت نے کارروائی کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے انسداد آلودگی کے متعلق آلات نہ لگوانے والی شوگر ملز کے متعلق رپورٹ پیش کی۔ شوگر انڈسٹریز میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے جا رہے ہیں، اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے۔ 15 سے 16 کے قریب جو سندر میں انڈسٹریز ہیں انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیے، اس حوالے سے بھی پیشکش کی گئی اور اب رپورٹ دی گئی۔ سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے عمران سلیمی نے عدالت سے استدعا کی کہ دکانیں بند کرنے کے حکم کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھا جائے، رات 10 بجے دکانیں بند نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں۔ درخواست گزار نے آلودگی کے تدارک کے لیے 2018 میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور عدالت نے اس کیس میں کئی اہم احکامات جاری کیے ہیں۔
कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट का जेल रोड की रीमॉडलिंग, पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाने का हुक्म। अदालत ने DG-LDA को शहर में ग्रीन एरियाज बनाने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में गैर कानूनी तमीरात के मुतल्लिक 8 साल से ज़ेर समाअत मुकदमे की समाअत की। सईद मोअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की गई। DG-LDA आमिर अहमद खान ने गुलबर्ग समेत 9 सड़कों को मॉडल बनाने के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जेल रोड की रीमॉडलिंग की जाए। हमने काफ़ी 9 मॉडल रोड्स को डिक्लेयर की थी। हमने उसके लिए लेजिस्लेशन की है, अपनी रेगुलेशंस को अमेंड किया है और हमने कोशिश की है कि कोर्ट की हर डायरेक्शन को लेटर स्पिरिट अमल करें। जैसे शाहिद करीम ने DG-LDA से कहा कि पार्किंग एक बड़ा इशू है, मोबाइल ऐप बनाने की जरूरत है। DG-LDA ने बताया कि अदालती अहकामात की रोशनी में रिकॉर्ड तरामीम की हैं। बुलंद अमारात की छतों पर रूफ गार्डन्स लगाना लाजमी करार दिया गया है। DG-LDA ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शहर में उठाए जाने वाले इक़दामात के मुतालिक बताया। हमने कोर्ट को यकीन दिलाया कि उसकी हम रीमॉडलिंग करेंगे और उसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड बनाएंगे। उसके लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाएंगे जो कि ग्रीन ब्रिजेस होंगे, रादर दैन कि हम कोई कंक्रीट का या उसका जो है लोहे का जंगल बना दें। वो ऐसे होंगे कि आपको लगेगा जैसे एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इंसदाद स्मोक के लिए सबको मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। शहरियों को स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। दरख्वास्त गुजार ने 2014 में मफाद आमा के तहत गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद नया बहरान मंडलाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज घी और ऑयल भी खत्म हो चुका है। 5 रोज से सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। एक जानिब शहर में महंगाई का सुनामी करीब तबके का जीना जीरन कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता घी और ऑयल भी नायाब हो गया है। खरीदारी की गर्ज से आने वाले ज़ईफ अफराद शदीद परेशान नजर आते हैं। बुजुर्ग खातून ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, 5 रोज से चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन सस्ता घी और ऑयल नहीं मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई कब आएगी इस बारे में मालूम नहीं है। प्याज एक बार फिर से महंगाई की चढ़ाई चढ़ने लगा। कीमत में 6 रुपये इजाफा, 1 किलो प्याज 260 रुपये का हो गया। प्याज का सरकारी निर्ख 240 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 260 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर सरकारी कीमत 55 के बजाय मंडी में 75, लहसुन 340 के बजाय 370, अदरक 40 के बजाय 450 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 155 के बजाय 170, आलू 29 के बजाय 35, बंद गोभी 20 के बजाय 25, मटर 10 के बजाय 105 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोशों की जानिब से सब्जियों के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया सरकारी निर्खों के मुताबिक सब्जी फरोख्त करवाने में मुकम्मल नाकाम है। वज़ीर आला पंजाब की मौजें खत्म। महकमा खजाना पंजाब ने गुजरात को मजीद 1 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की समरी मुस्तरद कर दी। किफायतशार मुहिम के तहत पंजाब में इजाफी ग्रांट्स का इजरा रोक दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने गुजरात को मजीद 1 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने से इनकार कर दिया है। महकमा बल्दियात ने गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। जराये के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने इजाफी ग्रांट के इजरा से माजरत कर ली है। महकमा बल्दियात को नई नवेली कंपनी के लिए इससे कबल 50 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़कूरा कंपनी के लिए 1.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की थी। महकमा बल्दियात ने मजीद फंड के इजरा के लिए महकमा खजाना से रुजू किया था। दाता दरबार मंसूबे में पार्किंग प्लाजे के लिए मुसाफिर खाने की कुर्बानी का फैसला। परवेज इलाही हुकूमत की जानिब से हंगामी तौर पर मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद LDA ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करना शुरू कर दी। मंसूबे के लिए दाता दरबार मुसाफिर खाने को मस्मार कर दिया जाएगा। LDA ने वज़ीर आला से मस्मारी की मंजूरी लेने का फैसला कर लिया है। LDA हुकाम मुसाफिर खाने की मस्मारी की समरी आज वज़ीर आला को पेश करेंगे। मुसाफिर खाने की 2 कनाल अराजी पर पार्किंग प्लाजा में शामिल की जाएगी। पार्किंग प्लाजा में 2 फ्लोर मुसाफिर खाने के लिए इस्तेमाल होंगे। 2017-18 में 17 करोड़ की लागत से मुसाफिर खाना बनाया गया था। चीफ इंजीनियर LDA 1 इसरार सईद का कहना है कि प्लाजे में मुसाफिर खाने के लिए पहले से ज्यादा जगह मुख्तस होगी। प्लाजा पार्किंग में गाड़ियों को मूवमेंट के लिए मजीद जगह लाजमी थी। हज़ारों असातिज़ा की ऑनलाइन छुट्टियों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। असातिज़ा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से छुट्टियों की दरख्वास्तें मंजूर करने की अपील कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की छुट्टियों की दरख्वास्तें मंजूर न करने का नोटिस ले लिया है। पंजाब भर में असातिज़ा की आर्जी छुट्टियों की 72% दरख्वास्तें मंजूर की गयी।
मेडिकल छुट्टियों की 63% दरख्वास्तें मंजूर की गयी। ऑन लीव 60%, मैटरनिटी लीव 69%, उम्रा की 58, हज 27, एक्स पाकिस्तान लीव की 58% दरख्वास्तें मंजूर की गयी। महकमा तालीम ने असातिज़ा की छुट्टियों की दरख्वास्तें 100% मंजूर करने की हिदायत की है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। शहर की ताजिर बरादरी और इम्पोर्टर्स के माल पोर्ट्स पर फंसने का मामला, मार्केट्स और बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की किल्लत पैदा हो गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर शहर की ताजर बिरादरी, इम्पोर्टर्स और सनतकारों का दबाव बढ़ गया है। बिजनेस कम्युनिटी पोर्ट्स पर खाम माल मुख्तलिफ अशिया से भरे कंटेनर्स जाने की वजह से परेशान है। ईवान सनत और तजारत के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी का कहना है कि सनत और तजारत का पहिया रुक गया है। सरमाए की सर्कुलेशन जामिद हो गई है। नामसाद हालात से सनत की एक्सपोर्ट बढ़ाकर बाहर निकाला जा सकता है। बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने पेश न होने पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की। अबर गुल खान ने केस की समाअत की। मियां हसी विक्की और मियां हामिद समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। किराए के शूटर माजिद हुसैन और कासिद इकराम को जेल से पेश किया गया, जबकि मुल्ज़िम मियां मारूफ उर्फ पप्पू शाह पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्ज़िम की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने बावर कराया कि तमाम मुल्ज़िम अदालत में पेशी यकीनी बनाए। हर समाअत पर कोई न कोई मुल्ज़िम गैर हाजिर रहता है। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमों की मुदई बिलाल यासीन से सुलह के लिए बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। फ्लैटीज होटल में पार्टी इजलास में तैयारियों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है, जबकि तकरीब का इनेकाद सैफ अल-मलूक खोखर की जानिब से किया गया। सैफ अल-मलूक खोखर का कहना था कि मरियम नवाज का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नून लीग ने पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। फ्लैटीज होटल में नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें सैफ अल-मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको मानना पड़ेगा। हर जगह पर बेज़िलाही की नहीं चलेगी, सब आइन के ताबे हैं। पाजिया पिंड में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ। मुकामी रहनुमा राना दिलशाद सफ्तर, राना फैसल और राना नदीम समेत दीगर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जलसे में असलम गिल, उस्मान मलिक, चौधरी अख्तर, जमील मंच, अमजद जट, चौधरी आतिफ समेत दीगर शरीक हुए। जलसे से खिताब के दौरान कमर ज़मान कायरा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को कराची की तरह पंजाब के इलेक्शन में भी शिकस्त होगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। ये पीपल्स पार्टी का एजाज है कि वो हर उस कारकुन को जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जो पार्टी को अपना वक्त देता है, हमेशा उसकी इज्जत और इज्जत नफ्स का ख्याल रखती है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान की पॉलिसीज के बायस महंगाई में इजाफा हुआ, पीडीएम की हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े। उन्होंने कहा कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला मानना पड़ेगा। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक खानदान है और अब इस खानदान के नाराज कारकुन वापस आ रहे हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हसन अली, सिटी 42। कराची तर्ज के इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के चेयरमैन एजाजुल हक की गुफ्तगू, कहते हैं काफ लीग पीटीआई में जम नहीं हो रही, क्योंकि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हैं। कोई ज़ाती हैसियत में पीटीआई में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है। 70-75 अरब रुपए लगते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए पाकिस्तान में, और 2 सूबे का मतलब ये है कि आप 75% पाकिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं और 25% पाकिस्तान में आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अगर 75% आप 75 अरब का खर्चेंगे 2 सूबों में इलेक्शंस करवाने के लिए, और 35 जो पहले 35 पंक्चर था, अब ये 35 इस्तीफे आ गए, अगर ये और भी आएंगे तो ये अगर ज़मीनी इंतखाब कराएंगे तो कैसे मुल्क मुकम्मल हो सकता है। यानी ये इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।